Good morning, students. Today I am going to make you understand the second chapter of Indian economic development, which is Indian economy from 1950 to 1990. And as earlier I told you that to make you understand this chapter, since it is a very broad chapter, this chapter has been divided into 4 topics. Topic number 1 मीन्स इन दिस चैप्टर इन फर्स्ट टॉपिक वी हैव टू स्टडी हमको क्या पढ़ना है इंडियन इकोनॉमिक प्लानिंग एंड लॉन्ग टर्म goals of 5-year plans which has already been discussed with you and a ppt of this topic has already been given. Now second topic is of this chapter agriculture sector during 1950 to 1990, which is also known as growth and development of agriculture sector during 1950 to 1990. Means under this topic we have to study that what policies and programs have been implemented during 1950 to 1990 to solve the various problems of agriculture sector, which has already been given to you. Means the ppt of this topic has already been given to you by me. Now next two topics are topic number 3. Topic number 3 is industrial sector during 1950 to 1990. Means in this topic now we are going to study that, we are going to understand that, means what policies were implemented by government of India to develop the industrial sector. And topic 4 foreign trade policy. For foreign trade, what policies were implemented in our country. These two topics are small topics, that is why I am going to take these two topics together. Okay, is this clear? Means in this ppt I am going to make you understand the two topics of this chapter 2. First, condition and policies and programs implemented for the improvement of industrial sector, and the trade policy implemented by government of India during which time period? During 1950 to 1990. 1950 to 1990. This is the topic. Now topic 3, I'm starting with this topic 3. What is this? Industrial sector. Firstly, before I'm going to make you understand the steps taken by government of India to improve the condition or to solve the problems of industrial sector, first of all I would like to make you understand the importance of industries. इंडिया में इंडस्ट्रियल सेक्टर 3 सेक्टर्स होते हैं किसी भी कंट्री में. इकोनॉमी कैन बी क्लासिफाइड इनटू 3 सेक्टर्स. एग्रीकल्चर सेक्टर we have already studied. Second is industrial sector. Third is service sectors. Now we are going to study that what is the importance of industries in India, what is the importance of agriculture. In the previous topic I have already made you understand the importance of industries in India. First importance, इंडस्ट्रीज़ आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट. किसी भी कंट्री के इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है इंडस्ट्रीज़. और इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में इनकी इंपॉर्टेंस इसीलिए बढ़ जाती है कि जीडीपी में नियरली 30%, जो जीडीपी का मतलब ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन. ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन का मतलब क्या होता है? कंट्री के भीतर ड्यूरिंग द टाइम पीरियड ऑफ 1 फाइनेंशियल ईयर कितनी गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन होता है, दैट इज़ नोन एज जीडीपी. तो जो टोटल प्रोडक्शन होता है उसका 30% कहाँ से आता है? इंडस्ट्रियल सेक्टर से आता है. तो ये पहला इंपॉर्टेंस. सेकेंड इंपॉर्टेंस, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर फॉरेन ट्रेड. ट्रेड का मतलब होता है एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट. और किसी भी कंट्री के लिए ट्रेड को तब फेवरेबल कंट्री में माना जाएगा जब वो एक्सपोर्ट ज़्यादा करे. तो एक्सपोर्ट फॉरेन ट्रेड में बहुत इंपॉर्टेंट होता है. दूसरे कंट्रीज़ को हम जितना ही बेचेंगे उतना ही रेवेन्यू कंट्री में जनरेट होगा. सेलिंग ऑफ गुड्स टू फॉरेन कंट्रीज इज़ एक्सपोर्ट एंड परचेजिंग ऑफ गुड्स फ्रॉम फॉरेन कंट्रीज़. तो जब हम परचेज करते हैं तो पेमेंट का बर्डन क्रिएट होता है. तो इम्पोर्ट, इसीलिए किसी भी कंट्री के लिए इम्पोर्ट कंट्रीज़ क्या करना चाहती हैं? ऑलवेज कंट्रीज ट्राई टू डिक्रीज द इम्पोर्ट एंड इंक्रीज द इम्पोर्ट. तो हमारी कंट्री के इम्पोर्ट में बहुत ही सिग्निफिकेंटली कंट्रीब्यूट कौन करती हैं? इंडस्ट्रियल गुड्स या इंडस्ट्रियल सेक्टर. तीसरा, दिस इज दीज, गलत लिख गया है, इट इज़ रॉन्ग. दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्रीकल्चर सेक्टर. एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए भी इंडस्ट्रियल सेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि एग्रीकल्चर सेक्टर में जो भी मशीन्स यूज़ करी जाती हैं उसकी मैन्युफैक्चरिंग कहाँ से होती है? इंडस्ट्रियल सेक्टर से होती है. तो इसीलिए ये भी एक तरह से बहुत इंपॉर्टेंट होती है. नेक्स्ट इम्पॉर्टेंस,
इंडस्ट्रीज़ आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एम्प्लॉयमेंट, क्योंकि एम्प्लॉयमेंट जनरेट करती है। जितनी ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ लाइक मोर इज़ द नंबर ऑफ इंडस्ट्रीज़, मोर पीपल विल बी एम्प्लॉयड, तो एम्प्लॉयमेंट क्रिएशन इससे बहुत ज़्यादा होता है। तो नेक्स्ट इंपॉर्टेंस है एम्प्लॉयमेंट क्रिएशन। दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर सर्विस सेक्टर ऑल्सो, क्योंकि सर्विस सेक्टर किस पे डिपेंड करता है? सर्विस सेक्टर का मतलब क्या होता है? ट्रांसपोर्टेशन, बैंकिंग, मार्केट, इंश्योरेंस, और इनमें जो भी गुड्स यूज़ होती हैं सब कहाँ मैन्युफैक्चर होती हैं। जैसे ट्रांसपोर्टेशन में जो मशीन्स लगती हैं, बैंक्स में जो मशीन्स, मार्केट में या इंश्योरेंस सेक्टर में भी जो भी मशीन्स या गुड्स जो भी यूज होती हैं, सबका प्रोडक्शन कहाँ होता है? मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर या इंडस्ट्रियल सेक्टर में होता है। तो इसलिए सर्विस सेक्टर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। इंडस्ट्रीज आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द इफ़िशिएंट यूटिलाइजेशन। कंट्री में जो भी नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं लाइक मिनरल्स, फॉरेस्ट प्रोडक्ट या फिशरीज़, इन सब का यूटिलाइजेशन कहाँ पे होता है? दीज आर यूज्ड एज अ रॉ मटेरियल इन इंडस्ट्रियल सेक्टर। तो इंडस्ट्रियल सेक्टर यदि होगा तभी नेचुरल रिसोर्सेज का इफ़िशिएंट यूटिलाइजेशन हो पाएगा। दिस इज़ अनदर इम्पॉर्टेंस। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंस, इंडस्ट्रीज इंक्रीज द नेशनल इनकम। जैसे जैसे इंडस्ट्रीज लगेंगी, प्रोडक्शन विल इंक्रीज, प्रोडक्शन इंक्रीज होगा, दैट विल बी सोल्ड, उसको सेल करा जाएगा मार्केट में, तो रेवेन्यू जनरेट होगा, वही रेवेन्यू इनकम के फॉर्म में लोगों के हाथों में आएगा। तो प्रोडक्शन, मोर इज़ द प्रोडक्शन, मोर विल बी नेशनल इनकम, एंड मोर इज़ द नेशनल इनकम मीन्स टोटल इनकम। मोर इज़ द टोटल इनकम, मोर विल बी द परचेजिंग पावर। जिसकी इनकम जितनी ज़्यादा होती है, परचेजिंग पावर भी उतनी ही ज़्यादा होती है, परचेजिंग पावर भी बढ़ जाएगी। नेक्स्ट, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर डिफेंस। जो डिफेंस, किसी भी कंट्री के डिफेंस के लिए डिफेंस इक्विपमेंट्स ज़रूरी होते हैं, और डिफेंस इक्विपमेंट्स बनते कहाँ पे हैं? दीज आर मैन्युफैक्चर्ड इन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर विच इज़ ऑल्सो नोन एज इंडस्ट्रियल सेक्टर। सो दीज आर द मेन इंपॉर्टेंस ऑफ इंडस्ट्रियल सेक्टर इन इंडिया. Next, now we'll try to understand that what are the problems. There are so many problems in industrial sector. पहला, poor infrastructure. इंडस्ट्रीज कब अच्छे से रन करेंगी? जब बैंक्स, मार्केट, रोडवेज, रेलवेज, एयरवेज, वाटरवेज ये सब रहेगा, तभी तो इंडस्ट्रीज़, क्योंकि इंडस्ट्री चलाने के लिए क्या क्या चाहिए होता है? पहला चाहिए होता है कोई भी इंडस्ट्री चलाने के लिए व्हाट इज़ द फर्स्ट थिंग, व्हाट आर द मेन थिंग्स विच आर रिक्वायर्ड टू रन एनी इंडस्ट्री सक्सेसफुली? फर्स्ट इज़ रॉ मटेरियल. तो प्रॉब्लम क्या है? स्कैर्सिटी ऑफ रॉ मटेरियल. This is the first problem. Why industrial sector is facing the problem? Because the things which are required to run any industry successfully, these are not available properly. First thing which is required to run any industry properly is raw material. There is a scarcity of raw material. Second thing क्या होता है? Second thing ये होता है कि मार्केट में ले जाके इनको बेचना होता है। जो भी प्रोडक्ट्स इंडस्ट्रीज में बनते हैं, मार्केट में बेचना। तो मार्केट में बेचने के लिए क्या चाहिए? रोडवेज, रेलवेज, एयरवेज, प्रोडक्शन करने के लिए मशीन्स चलानी होती है, उसके इलेक्ट्रिसिटी, ऑर्डर्स लेने के लिए टेली कम्युनिकेशन, ऑल दीज आर इंफ्रास्ट्रक्चर। तो इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे कंट्री में ख़राब है, इसलिए भी इंडस्ट्रीज़ जो हमारे कंट्री में है दे आर नॉट परफॉर्मिंग, दीज आर नॉट परफॉर्मिंग सेटिस्फैक्टरीली. नेक्स्ट, लैक ऑफ इन्वेस्टमेंट हमारे कंट्री में. मोर इज़ द इन्वेस्टमेंट. इन्वेस्टमेंट means expenditure on establishment of production unit in economics, that is known as productive investment. यहाँ इन्वेस्टमेंट का मतलब प्रोडक्टिव इन्वेस्टमेंट. तो हमारे कंट्री में इन्वेस्टमेंट कम है, दैट इज़ वाई less number of industries are working, that is why production is less, national income is less, and that is why in our country economic development is also next very low. Next thing which is required for industry is skilled and efficient worker. वर्कर्स यदि स्किल्ड होंगे, कौन स्किल्ड होंगे? जो हेल्दी होंगे, जो ट्रेंड होंगे, जो एजुकेटेड होंगे. बट हमारे कंट्री में हेल्दी वर्कर्स कम है बिकॉज ऑफ लैक ऑफ हेल्थ केयर फैसिलिटीज़. ट्रेंड वर्कर कम है क्योंकि ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशंस कम है. हमारे कंट्री में एजुकेटेड वर्कर्स कम है क्योंकि हमारे कंट्री में एजुकेशन फैसिलिटीज़ भी प्रॉपरली अवेलेबल नहीं है. लैक ऑफ रिसर्च एंड डेवलपमेंट. किसी भी इंडस्ट्रियल सेक्टर के सक्सेसफुली रन करने के लिए ज़रूरी होता है कि जो प्रोडक्ट्स बन रहे हैं उसकी मार्केट में डिमांड है कि नहीं, और डिमांड इस पर डिपेंड करती है कि लोग उसे लाइक कर रहे हैं कि नहीं, किस तरह के प्रोडक्ट लाइक कर रहे हैं. इसके लिए रिसर्च एंड डेवलपमेंट बहुत ज़रूरी होता है. हमारे कंट्री में कम होता है, इसीलिए हमारे इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स की डिमांड कम होती है. आप देखते हैं इंडियन जो गुड्स होती हैं उनकी डिमांड हम कम करते हैं, चाइनीज़ गुड्स की ज़्यादा करते हैं क्योंकि वो चीपर होती हैं और वो हमारे टेस्ट और प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग होती है क्योंकि वो लोग रिसर्च एंड डेवलपमेंट में बहुत ज़्यादा खर्च करते हैं. नेक्स्ट प्रॉब्लम इज़ लो प्रोडक्टिविटी. प्रोडक्टिविटी हमारे कंट्री में कम है. अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम है इंडस्ट्रियल सेक्टर में. कौन सा अनएम्प्लॉयमेंट? इनवॉलंट्री. इनवॉलंट्री अनएम्प्लॉयमेंट मीन्स अ पर्सन इज सेट टू बी
facing the problem of involuntary unemployment if he wants to work but he is unemployed because work is not available. तो इंडस्ट्रियल सेक्टर में बहुत सारे लोग काम करना चाहते हैं, फिर भी वो अनएम्प्लॉयड है क्योंकि वर्क इज़ नॉट अवेलेबल. तो इंडस्ट्रियल सेक्टर में स्पेशल काइंड ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट होता है जिसे बोलते हैं इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट. एग्रीकल्चर सेक्टर में मैंने आपको बताया था डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट बताया था. डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब होता है द नंबर ऑफ पीपल वर्किंग इन अ जॉब इज़ मोर देन एक्चुअली रिक्वायर्ड. किसी काम को करने के लिए 5 लोग जरूरी है, 7 लोग काम कर रहे हैं, तो आपको लगेगा ऑल 7 आर वर्किंग, बट एक्चुअली द 7 पीपल आर वर्किंग द वर्क ऑफ ओनली डूइंग द वर्क ऑफ ओनली 5 पीपल. तो यही एग्रीकल्चर सेक्टर में हो रहा है, जितने लोग चाहिए उससे ज़्यादा लोग काम कर रहे हैं. तो लगता है कि सब काम कर रहे हैं, बट एक्चुअली द नंबर ऑफ पीपल वर्किंग दैट इज़ मोर देन एक्चुअली रिक्वायर्ड, दैट इज़ डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट. कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा है हमारे कंट्री में, ये एक अलग प्रॉब्लम है. और जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ हमारे कंट्री में वर्क कर रही हैं, जो कि पार्ट है इंडस्ट्रियल सेक्टर का, लैक ऑफ क्रेडिट का मतलब होता है लोन. क्रेडिट का मतलब क्या होता है, लोन कम मिल रहा है इनको. सो दीज आर द प्रॉब्लम्स ऑफ इंडस्ट्रियल सेक्टर. अब हमको ये देखना है कि व्हाट स्टेप्स हैव बीन टेकन बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू सॉल्व दीज प्रॉब्लम्स ऑफ इंडस्ट्रियल सेक्टर. इंडस्ट्रियल सेक्टर की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए सिंस इंडिपेंडेंस टिल नाउ 5 industrial policies have been implemented. Industrial policy of 1948, 1956, 1977, 1980 and 1991. 1948 हमारे सिलेबस में नहीं है, नहीं पढ़ना है. 1956 की इंडस्ट्रियल पॉलिसी इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर. वी हैव टू स्टडी इन डिटेल इन दिस चैप्टर. इंडस्ट्रियल पॉलिसी ऑफ 1977 नहीं पढ़ना है. इंडस्ट्रियल पॉलिसी ऑफ 1980 नहीं पढ़ना है. 1991 की इंडस्ट्रियल पॉलिसी वी हैव टू स्टडी इन next chapter. Is this clear? So I'm going to next slide, in which I will make you understand that why this industrial policy of 1956 was implemented. What were the objectives? एक 1 मार्क में पूछ सकता है कि कब इम्प्लीमेंट किया गया. on 20 April 1956. What were the objectives? First objective was development of heavy good industries. जब मैं इंडियन इकॉनमी ड्यूरिंग ब्रिटिश पीरियड पढ़ा रहा था, उसमें इंडस्ट्रियल सेक्टर में कि प्रॉब्लम्स में बताया था लैक ऑफ हैवी गुड इंडस्ट्रीज़ या लैक ऑफ कैपिटल गुड इंडस्ट्री. वहाँ पे बताया था कैपिटल. हैवी गुड इंडस्ट्री का मतलब कैपिटल गुड. कैपिटल गुड इंडस्ट्री कौन सी होती हैं? दोज इंडस्ट्रीज इन विच ह्यूज मशीन्स आर मैन्युफैक्चर्ड विच आर यूज्ड इन अदर इंडस्ट्रीज टू प्रोड्यूस अदर गुड्स. इंडस्ट्रीज़ में जो गुड्स बनती हैं, उन गुड्स को बनाने के लिए हैवी मशीन्स लगती हैं. उन मशीन्स को जिन इंडस्ट्री में बनाया जाता है उन्हें हैवी गुड इंडस्ट्री. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिसाइडेड टू डेवलप द हैवी गुड इंडस्ट्रीज़. दूसरा, इंक्रीज ग्रोथ रेट. इंडस्ट्रियल सेक्टर का ग्रोथ रेट बढ़ाने का मतलब, रेट ऑफ ग्रोथ का मतलब क्या होता है? जिस रेट से जीडीपी बढ़ता है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन. जैसे बोला गया कि ग्रोथ रेट 5% है, इसका मतलब जीडीपी करंट फाइनेंशियल ईयर में पिछले साल जितना जीडीपी था उससे 5% ज़्यादा हो गया. मतलब पिछले फाइनेंशियल ईयर में यदि 100 जीडीपी था तो अभी बढ़ के कितना हो गया है? 105. ये ग्रोथ रेट का मतलब होता है. तो 2 ऑब्जेक्टिव्स हैं, इनको सीधे सीधे याद कर लीजिए. डेवलपमेंट ऑफ हैवी गुड या कैपिटल गुड इंडस्ट्रीज़, और दूसरा इंक्रीज इन द ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्रियल सेक्टर का ग्रोथ बढ़ाना. दीज वे द 2 ऑब्जेक्टिव्स ऑफ दिस इंडस्ट्रियल पॉलिसी. नाउ मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस chapter. Now we have to study the main features of industrial policy of 1956. इसके कौन कौन से फीचर्स थे? 6 फीचर्स मैंने दिए हैं. इसमें पहला फीचर था क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्री. पहली बार जो इंडस्ट्रीज़ थी उनको 3 शेड्यूल्स में, 3 टाइप्स में डिवाइड कर दिया गया. 3 शेड्यूल्स बनाया गया. टाइप्स को यहाँ शेड्यूल लिखा गया. शेड्यूल ए, इसमें कितनी इंडस्ट्रीज़ रखी गई? 17 इंडस्ट्रीज़ रखी गई. एंड दीज वेर कम्प्लीटली रिजर्व फॉर पब्लिक सेक्टर. इन इंडस्ट्रीज़ को प्राइवेट सेक्टर नहीं लगा सकता था. उन इंडस्ट्रीज़ के नाम क्या थे ये इंपॉर्टेंट नहीं है, यही मैंने इसलिए नहीं दिया. केवल याद कर लीजिए 17 इंडस्ट्रीज़ थी जिनको कम्प्लीटली रिजर्व कर दिया गया पब्लिक सेक्टर के लिए. मतलब ये सरकार ही लगा पाएगी, प्राइवेट इन्वेस्टर्स ये इंडस्ट्रीज़ नहीं लगा पाएंगे. शेड्यूल बी, इसमें 12 इंडस्ट्रीज़ को रखा गया. ये ऐसी इंडस्ट्रीज़ थी जिसका मालिक कौन होगा? पब्लिक सेक्टर. मतलब इन इंडस्ट्रीज़ को इस्टेब्लिश कौन करेगा? पब्लिक सेक्टर. लेकिन जो इंडस्ट्रीज़ पहले से लगी हुई हैं
उनके डेवलपमेंट में वो प्राइवेट सेक्टर से हेल्प ले सकता है। मतलब प्राइवेट इंडस्ट्री लगाएगी कौन? गवर्नमेंट। ये 12 इंडस्ट्रीज़ को गवर्नमेंट लगाएगी, लेकिन रॉ मटेरियल या इलेक्ट्रिसिटी या ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी ये प्राइवेट सेक्टर से वो लोग ले सकते थे। यहाँ पे प्राइवेट सेक्टर किसी भी तरह से अलाउड नहीं था। मीन्स responsibility of establishment and development both were on the shoulders of public sector. Here, responsibility of establishment of new production units in Schedule B in these 12 industries was on the shoulders of government of India or on state governments, but these governments were allowed to take help of private sector in the development of existing units. एग्जिस्टिंग यूनिट्स का डेवलपमेंट का मतलब एग्जिस्टिंग यूनिट का डेवलपमेंट कब होगा? जब प्रॉपर रॉ मटेरियल मिलेगा या प्रॉपर फाइनेंस मिलेगा, प्रॉपर लोन मिलेगा। ये सारी फैसिलिटीज़ वो प्राइवेट सेक्टर से ले सकते थे। इन 17 और 12 के अलावा ऑल अदर इंडस्ट्रीज़ जो बच गई वो सब शेड्यूल सी में रखी गई और ये अलाउड थी कम्प्लीटली किसके लिए? प्राइवेट सेक्टर। दीज वेर कम्प्लीटली ओपन फॉर प्राइवेट सेक्टर। इनमें प्राइवेट सेक्टर न्यू प्रोडक्शन यूनिट्स लगा सकता था, ओनर भी हो सकता था, उनका डेवलपमेंट भी कर सकता था। इन ऑल द कॉन्टेक्स्ट प्राइवेट सेक्टर वाज अलाउड। नेक्स्ट फीचर ऑफ दिस इंडस्ट्रियल पॉलिसी वाज इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग। मतलब इंडस्ट्री लगाने के लिए प्राइवेट सेक्टर को ज़रूरी था क्या लेना? लाइसेंस। और एक्सपेंशन के लिए भी, एक्सपैंड के लिए मतलब एक इंडस्ट्री लगाएगी, एक फैक्ट्री एक इंडस्ट्री में लगाएगी, एक और फैक्ट्री लगाना है तो उसके लिए भी लाइसेंस लेना पड़ता था। एक्सपेंशन मीन्स इंक्रीज इन द नंबर ऑफ प्रोडक्शन यूनिट्स, फैक्ट्रीज। नेक्स्ट था इंडस्ट्रियल कंसेशन। ये कॉन्सेप्शन गलत हो गया है, कंसेशन CONCESSION। कंसेशन का मतलब होता है छूट। इसमें क्या हो गया? ऐसे इंडस्ट्रीज़ को जो इकोनॉमिकली बैकवर्ड रीजन्स में लग रही थी, इकोनॉमिकली बैकवर्ड रीजन मतलब पिछड़े क्षेत्रों में लग रही थी, उनको स्पेशल फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करेगी। टैक्स हॉलीडे दिया गया, मतलब कुछ सालों तक टैक्स में उनको क्या दिया गया? छूट, फ्रीडम। और इलेक्ट्रिसिटी उनको लो, इलेक्ट्रिसिटी एक्ट नहीं है, ये एक्ट है, इलेक्ट्रिसिटी एट लो प्राइस, उनको सस्ती बिजली दी जाती थी। क्यों? ताकि मोटिवेट किया जा सके इंडस्ट्रियलिस्ट्स को अपनी प्रोडक्शन यूनिट कहाँ पे लगाने के लिए? जो इकोनॉमिकली बैकवर्ड रीजन्स थे। क्योंकि जनरली वो जो इंडस्ट्रियलिस्ट होते हैं कहाँ पे इंडस्ट्रीज लगाते हैं? वहीं पे जहाँ पे ऑलरेडी काम कर रही हैं, क्योंकि वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होता है। तो अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या करा? इसमें एक स्टेप उठाया कि इंडस्ट्रीज़ जो लोग लगाएंगे इकोनॉमिकली बैकवर्ड रीजन में, ताकि इकोनॉमिकली बैकवर्ड रीजन्स का भी डेवलपमेंट हो सके, उनको मिलेंगी 2 कंसेशंस। पहला टैक्स हॉलीडे का कंसेशन मिलेगा और दूसरा कंसेशन किसका मिलेगा? इलेक्ट्रिसिटी एट लो प्राइस। ये 2 कंसेशंस इनको मिलेंगे। और तीसरा डेवलपमेंट ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने डिसाइड किया कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ को डेवलप किया जाएगा, इनकी जो भी प्रॉब्लम्स हैं इनको सॉल्व किया जाएगा। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ का क्या इंपॉर्टेंस है ये मैं नेक्स्ट अगले स्लाइड्स में आप लोगों को बताऊँगा। So, fourth, development of small scale industries. Next, better facilities for laborers. Government of India decided to provide better working condition to the laborers. मजदूरों की वर्किंग कंडीशन अच्छी हो, so that क्यों ऐसा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने करा? कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का मेन गोल क्या होता है? टू इंक्रीज द सोशल वेलफेयर। सोशल वेलफेयर बढ़ाना मेन गोल होता है। सोशल वेलफेयर कब बढ़ेगा? जब वर्किंग कंडीशन लेबरर्स की अच्छी होगी। इनिशियली जो लेबरर्स रहते थे उनकी वर्किंग कंडीशन बहुत स्लगिश होती थी, अच्छी नहीं रहती थी। सो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिसाइडेड टू टेक सम स्टेप्स टू इम्प्रूव द वर्किंग कंडीशन ऑफ लेबरर्स। इसके लिए क्या करा गया? प्रोविजंस लाए गए। क्या डिटेल में हमको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बस याद रखना है कि बेटर फैसिलिटीज़ कौन कौन सी लेबरर्स को प्रोवाइड करेगी इस इंडस्ट्रियल पॉलिसी में। बेटर वर्किंग कंडीशन, उनकी कंडीशन वर्किंग होगी। पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट डिसीजन लेता है इंडस्ट्रीज़ में, क्या होना चाहिए, क्या प्राइस होगा, लेबरर्स को क्या फैसिलिटी दी जाएगी। अब इस मैनेजमेंट में पार्टिसिपेशन एक रिप्रेजेंटेटिव किसके तरफ से अब रहता है? लेबरर्स की जो यूनियन होती है उसका एक रिप्रेजेंटेटिव अब मैनेजमेंट में रहता है और लेबरर्स के बेटरमेंट के लिए डिसीजन लेता है। तो ये एक फैसिलिटी दी गई। उसके बाद 5th जो फीचर था इंडस्ट्रियल पॉलिसी ऑफ 1956,
टेक्निकल एजुकेशन एंड मैनेजरियल स्किल। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मैंने बताया था ना इंडस्ट्रियल सेक्टर की प्रॉब्लम थी कि स्किल्ड और एफिशिएंट वर्कर्स नहीं मिल रहे हैं हमारे कंट्री में, या नहीं मिल रहे थे जस्ट आफ्टर इंडिपेंडेंस। सो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिसाइडेड टू प्रोवाइड टेक्निकल एजुकेशन। टेक्निकल एजुकेशन, जब वर्कर्स को टेक्निकल एजुकेशन मिलेगी तो जाहिर सी बात है वो अच्छा काम करेंगे, उनकी इफ़िशियंसी ज़्यादा रहेगी। तो टेक्निकल एजुकेशन के लिए हमारे कंट्री में इस्टेब्लिश क्या करेंगे, ITIs, इंडियन टेक्निकल इंस्टीट्यूट्स हमारे कंट्री में है। 10th के बाद बहुत सारे बच्चे करते हैं। और बिजनेस मैनेजमेंट कोर्स हमारे कंट्री में इनिशिएट किए गए। क्या प्रोवाइड करने के लिए, मैनेजरियल स्किल, लोग अच्छे मैनेजर्स बने, क्योंकि किसी भी इंडस्ट्री के डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी है कि वहाँ पे अच्छे मैनेजर्स हों। नेक्स्ट, दिस वन इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़। अब देखिए, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ पहले इनको बोला जाता था, या शॉर्ट में इनका नाम देखा जाए स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ को SSI, स्मॉल एस प्लूरल में, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़, ये ES वाला है, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़। लेकिन आज के डेट में इनका नाम क्या है, MSME। तो कभी पूछा जाता है स्मॉल स्केल इंडस्ट्री या MSME, दोनों का मतलब एक ही होगा। पहले इनको स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ बोला जाता था, अब इनको बोला जाता है MSME का मतलब माइक्रो। M स्टैंड्स फॉर माइक्रो, S स्टैंड्स फॉर स्मॉल, M स्टैंड्स फॉर मीडियम, E फॉर एंटरप्राइजेस। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ पे पूछा जा सकता है कि व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस, व्हाट आर द प्रॉब्लम्स, व्हाट इज़ स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। तो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री वो होती है which is defined with reference to the maximum investment limit। लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज़ में इन्वेस्टमेंट की कोई मैक्सिमम लिमिट नहीं होती, चाहे जितना इन्वेस्ट कर दे पैसा आप खर्च कर सकते हैं। लेकिन स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ में इन्वेस्टमेंट की एक मैक्सिमम लिमिट फिक्स कर दी जाती है। 1950 में ये कितनी थी, 5 लाख रुपीज़। अब स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ को माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज के नाम से जाना जाता है। कब से जाना जाता है, ऑन 2 अक्टूबर 2006 एक एक्ट लाया गया हमारे कंट्री में, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस डेवलपमेंट एक्ट। क्या लाया गया, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस को डिफाइन करने के लिए माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस डेवलपमेंट एक्ट लाया गया 2 अक्टूबर को। इसी एक्ट में पहली बार स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ की जगह पे इनका नाम क्या यूज़ किया गया, फर्स्टली इन प्लेस ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज एंड न्यू टर्म वाज यूज्ड, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस, MSMEs टर्म यूज़ किया गया। And in this act, MSMEs have been classified into 2 categories. Now we'll try to understand what these categories are in the next slide. ये 2 categories क्या हैं, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ की 2 कैटेगरीज, एक कौन से है, मैन्युफैक्चरिंग स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ या मैन्युफैक्चरिंग माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, और दूसरे सर्विस इंटरप्राइजेस, मतलब सर्विस माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। अब इनमें इन्वेस्टमेंट लिमिट क्या है, इनमें 3 तरह के हो गए ना, M फॉर माइक्रो एंटरप्राइजेस, स्मॉल एंटरप्राइजेस, मीडियम एंटरप्राइजेस। माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम, माइक्रो एंटरप्राइजेस यदि मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट मतलब ऐसी कोई इंडस्ट्री है जिसमें गुड्स बन रही हैं, गुड्स, तो इनको क्या बोलेंगे, मैन्युफैक्चरिंग एंटरप्राइजेस। और ऐसी कोई यूनिट है जिसमें गुड्स नहीं बन रही, सर्विसेज बन रही हैं। गुड्स की यूनिट मतलब टूथपेस्ट बनाने वाली फैक्ट्री, मोबाइल बनाने वाली फैक्ट्री, एग्जाम्पल हो गया। सर्विस इंटरप्राइजेस मतलब जो इंटरप्राइजेस सर्विस देते हैं, जैसे चार्टर्ड अकाउंटेंट कोई है वो, या कोई लीगल फर्म है, या स्कूल है सर्विसेज प्रोवाइड करता है, या हॉस्पिटल, ये सब सर्विस इंटरप्राइजेस हैं। तो ऐसा कोई भी मैन्युफैक्चरिंग इंटरप्राइजेस जिसमें इन्वेस्टमेंट मैक्सिमम कितने तक किया गया है, 25 लाख, उसे माइक्रो बोला जाएगा। Any manufacturing enterprises in which more than 25 lakh rupees but less than 5 crore rupees have been invested is small enterprises. Any enterprises in which more than 5 crore but less than 10 crore has been invested will be known as medium enterprises. So micro, small, medium manufacturing enterprises कितने तरह का हो गया, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम। माइक्रो 25 लाख रुपीज़ तक इन्वेस्टमेंट, स्मॉल 25 लाख टू 5 करोड़, मीडियम 5 करोड़ टू 10 करोड़। एंड सर्विस एंटरप्राइजेस ऐसे ही, इसमें भी माइक्रो दैट एंटरप्राइजेस इन विच मैक्सिमम 10 लाख रुपीज़ हैज़ बीन इन्वेस्टेड, स्मॉल more than 10 lakh but less than 2 crore rupees has been invested, medium enterprises more than 2 crore but
लेस देन 5 करोड़ रुपीज़। सो आपको याद करना पड़ेगा मैन्युफैक्चरिंग इंटरप्राइजेज में भी माइक्रो स्मॉल मीडियम, सर्विस में भी माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग में के माइक्रो में 25 लाख, सर्विस के माइक्रो में 10 लाख रुपीज़, मैन्युफैक्चरिंग के स्मॉल में 25 to 5 करोड़, स्मॉल सर्विस के स्मॉल एंटरप्राइज में 10 लाख to 2 करोड़, एंड मीडियम एंटरप्राइजेस मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के जो मीडियम एंटरप्राइजेस हैं उसमें 5 करोड़ to 10 करोड़, और यहाँ सर्विस के मीडियम एंटरप्राइजेस में 2 करोड़ to 5 करोड़। यू विल हैव टू मग अप दिस, ये आपको याद करना पड़ेगा। ये तो रहा इनका डेफिनेशन इनके बारे में। नाउ विल ट्राई टू अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज होती हैं इनकी इम्पोर्टेंस क्या है हमारी इकॉनमी में, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो इनका इम्पोर्टेंस आप देख सकते हैं। सो टू गेट द इम्पोर्टेंस, टू अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ दीज small scale industries, you will have to see the points given on this slide one by one. And one important thing, in examination small scale industries may be referred as MSMEs also. Means in examination whether it is being asked in examination whether they are asking small scale industries or MSMEs, both are same. So while making you understand these slides, if I'm using term small scale industries or MSMEs, both are same. First importance, कर्वे कमेटी, मिस्टर डीजी कर्वे एक बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट हुए हैं, उनके चेयरमैनशिप में 1955 में एक कमेटी बनाई गई। उस कमेटी का नाम था विलेज एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज कमेटी, विलेज एंड स्मॉल। चूँकि इसके चेयरपर्सन डीजी कर्वे थे इसलिए इसे कर्वे कमेटी भी कहा जाता है। What was the responsibility given to this committee to understand the importance? इसको क्या जिम्मेदारी दी गई, इस कमेटी का काम क्या था? इम्पोर्टेंस स्टडी करना, किसका? स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ का। स्टडी करने के बाद इस कमेटी ने बताया कि दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर रूरल डेवलपमेंट। तो पहला इंपॉर्टेंस क्या हो गया स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ का? According to Karve committee, these are very important for rural development. Sometimes a short note is also asked over कर्वे कमेटी, तो याद कर लीजिएगा डीजी कर्वे के बारे में। नेक्स्ट, एम्प्लॉयमेंट क्रिएशन। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज लेबर इंटेंसिव टेक्निक्स, ऐसी टेक्निक जिसमें लेबरर्स ज़्यादा रिक्वायर्ड होते हैं। ये कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक्स पे बेस्ड नहीं होती हैं, लेबर इंटेंसिव टेक्निक पे बेस्ड होती हैं, इसीलिए एम्प्लॉयमेंट so employment creation, these are very very important small scale industries for employment creation. Why? Because these are based on labor intensive techniques. जब लेबर इंटेंसिव टेक्निक्स रहेगी तो ज़्यादा लेबर्स की रिक्वायरमेंट होगी, ज़्यादा लेबर्स की रिक्वायरमेंट होगी तो अपने आप एम्प्लॉयमेंट क्रिएशन होगा। वेरी इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल, जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ में द प्रोडक्ट्स विच आर प्रोड्यूस जनरली दीज आर यूज्ड in large scale industries as raw material. So we can say that these are very important source of raw material, and these are very important for GDP also because they contribute nearly 37.5% to GDP of our country. Next importance, these contribute 45% to overall export. Export जो हमारे कंट्री में जो गुड्स और सर्विसेज का होता है उसमें 45% गुड्स एंड सर्विसेज कहाँ से आती हैं? जो एक्सपोर्ट करी जाती हैं स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज से। एंड दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट इन रिमूविंग द प्रॉब्लम ऑफ पॉवर्टी ऑल्सो, बिकॉज एज आई टोल्ड यू इन अर्लियर स्लाइड दैट दीज क्रिएट मोर एंड मोर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज। इफ पीपल आर गेटिंग एम्प्लॉयमेंट means they will be getting the permanent source of income. If more and more people are getting permanent source of income, means more and more people are coming out of poverty. So these are very important in removing the problem of poverty also. So these are the importance. Now another thing, the problems, small scale industries की क्या problem है, we have to understand this also. सो प्रॉब्लम्स जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ की हैं वो वही हैं जो मैंने इंडस्ट्रियल सेक्टर की प्रॉब्लम बताई, ज़्यादातर वही हैं में सेम। पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर वहाँ भी आया था, लैक ऑफ इन्वेस्टमेंट, लैक ऑफ स्किल्ड एंड एफिशिएंट वर्कर्स सेम,
lack of research and development same, low productivity same, high cost of production same, lack of credit same, scarcity of raw material same. केवल एक डिफरेंस है, वहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम मैंने बताया था, यहाँ पे स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ में अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि कंट्राडिक्शन हो जाएगा. अभी इंपॉर्टेंस में मैंने बताया था कि दीज आर वेरी गुड सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट जनरेशन. तो एक तरफ हम बता रहे हैं एम्प्लॉयमेंट जनरेट करती हैं, तो दूसरी तरफ नहीं बोल सकते ना कि अनएम्प्लॉयमेंट, इसीलिए इनकी प्रॉब्लम अनएम्प्लॉयमेंट नहीं है. तो यदि याद कर लें आप, इंडस्ट्रियल सेक्टर की प्रॉब्लम सेम प्रॉब्लम स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ की है, केवल एक डिफरेंस है, वहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट एक प्रॉब्लम है, यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम नहीं है. सो नेक्स्ट स्लाइड. Now we'll try to understand the steps taken by Government of India to solve the problems of small scale industries. स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ की जो प्रॉब्लम्स है उनको सॉल्व करने के लिए गवर्नमेंट ने सबसे पहले 1950s में स्टेप उठाया था. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने रिजर्वेशन कर दिया. 800 प्रोडक्ट्स, बहुत इंपॉर्टेंट है, 800 प्रोडक्ट्स को रिजर्व कर दिया गया स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ के लिए. क्यों रिज़र्व करा गया कि 800 प्रोडक्ट्स यदि ये रिज़र्व नहीं किए जाते तो ये स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ में भी बनते और लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज़ में भी बनते. और लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज़ में कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम होती है और क्वालिटी उनके प्रोडक्ट्स की अच्छी होती है एज़ कम्पेयर टू स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़. सो इफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिड नॉट रिजर्व 800 products for small scale industries, these small scale industries would have to compete with large scale industries. And now we all know this thing clearly, that small scale industries cannot compete with large scale industries. So उनको large scale industries की competition से बचाने के लिए 800 products पूरी तरह से रिजर्व कर दिए गए स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ के लिए. बट एट प्रेजेंट ये रिजर्वेशन हटा दिया गया है. अब ये 800 प्रोडक्ट्स स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ के लिए भी ओपन है और लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज़ के लिए भी ओपन है एट प्रेजेंट. मैं 1950s में क्या किया गया था वो मैं बता रहा हूँ. ड्यूरिंग 1950 टू 1990, 1991 में जो नई पॉलिसी लाई गई उसमें रिजर्वेशन को हटा दिया गया. क्यों, वो मैं नेक्स्ट चैप्टर में आपको बताऊँगा. दूसरा स्टेप लिया गया स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ के लिए, कंसेशन दिया गया, इनको छूट दी गई, कई तरह की छूट दी गई. स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ या इनको MSMEs भी बोला जाता है, इनको मेनी कंसेशंस दिए गए हैं. जैसे एक्साइज ड्यूटी मतलब टैक्स ऑन प्रोडक्शन. टैक्स ऑन प्रोडक्शन लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज़ में ज़्यादा लगता है, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ में जो प्रोडक्शन पे जो टैक्स लगता है उसको बोलते हैं एक्साइज ड्यूटी, उत्पादन कर हिंदी में बोलते हैं. तो जो गुड्स इसमें प्रोड्यूस होती हैं और सर्विसेज प्रोड्यूस होती हैं उन पर टैक्स कम लगता है. और इनको लोन, बैंक्स लोन देते हैं एट लो इंटरेस्ट रेट. लार्ज स्केल इंडस्ट्री लगाने जा रहे हैं उसके लिए लोन लेंगे तो ज़्यादा इंटरेस्ट आपको पे करना पड़ेगा, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ के लिए कम. देखिए ये स्टेप उठाया गया. और सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप उठाया गया, सिडबी इस्टेब्लिश करा गया. सिडबी का क्या होता है, S स्टैंड्स फॉर स्मॉल आई इंडस्ट्रीज़, D डेवलपमेंट, B बैंक इंडिया, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया. ये सिडबी आप याद कर लीजिएगा. ऑन 2 अप्रैल 1990 को इस्टेब्लिश करा गया. क्या करने के लिए, टू प्रमोट स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ को प्रमोट करने के लिए, उनको डेवलप करने के लिए और उनको फाइनेंस मतलब लोन की फैसिलिटी प्रोवाइड करने के लिए इसको इस्टेब्लिश करा गया. सिडबीज लोन प्रोवाइड करते हैं स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ यदि आप लगाना चाहते हैं तो उसके लिए. और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे स्थित है, लखनऊ में. नेक्स्ट विल स्टडी द नेक्स्ट स्टेप टेकन बाय गवर्नमेंट फॉर स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़. एंड दिस वन इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट. इसको आपको अच्छे से ही याद करना पड़ेगा, सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप है अकॉर्डिंग टू मी. ये क्या स्टेप है, PMMY शॉर्ट फॉर्म, फुल फॉर्म प्रधानमंत्री मुद्रा योजना. ये स्कीम 8 अप्रैल 2015, डेट भी याद रखना ज़रूरी है. इट वॉज लॉन्च्ड बाय आवर प्राइम मिनिस्टर मिस्टर नरेंद्र मोदी. किस लिए, टू प्रोवाइड द लोन अप टू हाउ मच, 10 लाख रुपए तक का लोन प्रोवाइड करने के लिए एट वेरी लो इंटरेस्ट रेट. टू होम, टू SSI का मतलब स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़, या इन्हीं को कहा जाता है MSMEs, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस के लिए. इस स्कीम में मुद्रा बैंक स्टैब्लिश करा गया, एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन बनाया गया है जिसे मुद्रा बैंक बोलते हैं. मुद्रा का फुल फॉर्म क्या है यहाँ पे, मुद्रा, M फॉर माइक्रो, U फॉर यूनिट, D फॉर डेवलपमेंट, R फॉर रीफाइनेंस, A फॉर एजेंसी. मुद्रा का फुल फॉर्म ही पूछा जा सकता है. माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट एंड रीफाइनेंस एजेंसी को सेटअप करा गया ऑन दिस डेट.
मुद्रा बैंक का काम क्या है? मुद्रा बैंक प्रोवाइड्स 3 टाइप्स ऑफ लोन्स ओनली टू स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज या MSMEs। 3 तरह के लोनों का नाम है, 3 तरह के लोन्स का नाम क्या है? शिशु लोन, किशोर लोन एंड तरुण लोन। शिशु लोन कितने तक के दिया जाता है? 50,000 तक का लोन जो दिया जाता है वो शिशु लोन बोलते हैं। मोर देन 50,000 बट लेस देन 5 लाख रुपीज़ तक के जो लोन होते हैं उनको किशोर बोला जाता है, तरुण बोला जाता है, जिसमें 10 लाख रुपीज़ तक मीन्स मोर देन 5 लाख एंड लेस देन 10 लाख रुपीज़ तक का जो लोन दिया जाता है उसे तरुण लोन बोला जाता है। तो ये कुछ स्टेप्स थे जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लिए हैं फॉर द इम्प्रूवमेंट ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़। अब एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है, वाई वॉज पब्लिक सेक्टर गिवन अ लीडिंग रोल इन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ड्यूरिंग प्लानिंग पीरियड? मीन्स ड्यूरिंग 1950 टू 1990। यहाँ प्लानिंग पीरियड मतलब 1950 टू 1990, ये वाला टाइम पीरियड। इसमें इंडस्ट्रियल सेक्टर में लीडिंग रोल मतलब ज़्यादातर इंडस्ट्रीज़ को किसके लिए रिजर्व कर दिया गया? पब्लिक सेक्टर के लिए। प्राइवेट सेक्टर बहुत कम इंडस्ट्रीज़ में अलाउड था, इसीलिए लीडिंग रोल किसका हो गया? पब्लिक सेक्टर का। पब्लिक सेक्टर मतलब गवर्नमेंट का, सरकारी कंपनियां ज़्यादा लगी। मतलब ड्यूरिंग 1950 टू 1990 मोस्ट ऑफ द इंडस्ट्रीज वेयर इन पब्लिक सेक्टर मीन्स रोडवेज, रेलवेज, एयरवेज, वाटरवेज, बैंक्स, मार्केट्स, इलेक्ट्रिसिटी, टेलीकम्युनिकेशन, पावर सप्लाई सब पब्लिक सेक्टर में थे। अब एक एक करके सबको हटा दिया गया। आफ्टर 1991 गवर्नमेंट का डोमिनेंस कम होता गया है। अब पब्लिक सेक्टर के लिए रिजर्व केवल रेलवे है और एटॉमिक एनर्जी। इवन डिफेंस इक्विपमेंट भी बनाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी प्राइवेट सेक्टर को दे दिया गया। इलेक्ट्रिसिटी प्राइवेट सेक्टर, टेलीकम्युनिकेशन, रोडवेज, वाटरवेज, एयरवेज सब में प्राइवेट प्लेयर्स आ गए। लेकिन स्टार्टिंग में मेन रोल किसका था? पब्लिक सेक्टर का था। क्यों? इसके 3 कारण हैं। फर्स्ट, लैक ऑफ कैपिटल विद प्राइवेट सेक्टर। सिंस प्राइवेट सेक्टर वाज नॉट हैविंग सफिशिएंट कैपिटल, जब कंट्री इंडिपेंडेंट हुआ तो उस समय हमारे कंट्री के जो प्राइवेट इन्वेस्टर्स थे उनके पास ज़्यादा कैपिटल नहीं था, इसीलिए वो ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ सेट नहीं कर सकते थे। और कंट्री के डेवलपमेंट के लिए मोर एंड मोर इंडस्ट्रीज़ वेर रिक्वायर्ड टू बी सेटअप। दैट इज़ वाई मोस्ट ऑफ द इंडस्ट्रीज़ वेर गिवन टू पब्लिक सेक्टर, बिकॉज गवर्नमेंट न्यू दिस थिंग दैट इफ रिस्पॉन्सिबिलिटी वॉज गिवन टू private sector would not be able to establish sufficient industries because of lack of capital. यदि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्राइवेट सेक्टर को इंडस्ट्रीज लगाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी जस्ट आफ्टर इंडिपेंडेंस देती थी तो प्राइवेट सेक्टर के पास इतना कैपिटल नहीं था कि वो इंडस्ट्रीज लगा पाते। इसीलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लिया इंडस्ट्रीज लगाने की। दूसरा, लैक ऑफ मोटिवेशन फॉर प्राइवेट सेक्टर। उस टाइम पे जब हम इंडिपेंडेंट हुए थे, न्यूली इंडिपेंडेंट कंट्री थे हमारे, तो उस समय मोटिवेशन प्राइवेट सेक्टर के पास कम था। मोटिवेशन कब ज़्यादा होता है? जब प्रोडक्ट्स की डिमांड ज़्यादा होती है तो मोटिवेशन ज़्यादा होता है। प्रोडक्ट्स की डिमांड कम रहेगी तो मोटिवेशन इंडस्ट्री लगाने का कम रहेगा। न्यूली इंडिपेंडेंट कंट्री होने के कारण हमारे कंट्री में, हमारा कंट्री क्या था? स्टैंडिंग नहीं, स्टैगनेंट एंड बैकवर्ड। ये गलत से स्टैंडिंग लेके है। हमारा कंट्री क्या था? स्टैगनेंट एंड बैकवर्ड कंट्री था। लोगों के पास इनकम कम थी, इसीलिए लोगों के पास परचेजिंग पावर लोगों के पास बहुत कम थी, इसीलिए प्रोडक्ट्स की डिमांड हमारे कंट्री में बहुत कम थी। प्रोडक्ट की डिमांड कम होने के कारण प्राइवेट सेक्टर के पास बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं था, क्योंकि उनको पता था प्रोड्यूस करेंगे गुड्स को तो डिमांड उनकी कम रहेगी। इसीलिए वो उनके पास मोटिवेशन नहीं था, इंटरेस्ट नहीं था प्रोडक्शन के लिए। इसीलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने प्रोडक्शन की रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद ले ली, गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करने की। And last one is growth with social justice. This was the third factor why government of India या public sector played leading role in the industrial development of our country. गवर्नमेंट को ये रियलाइजेशन हो गया कि यदि सारे प्रोजेक्ट्स प्राइवेट सेक्टर को दे दिए जाते हैं, प्राइवेट को, तो उनका गोल क्या होता है? प्रॉफिट। तो वो लोग प्रॉफिट के लिए काम करेंगे और इस तरह से सोशल वेलफेयर का गोल पीछे छूट जाएगा। बट ग्रोथ के साथ सोशल जस्टिस मतलब सोशल वेलफेयर का गोल भी बहुत ही ज़रूरी है। लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को पता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया न्यू दैट इफ़ प्राइवेट सेक्टर वाज गिवन द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ प्रोडक्शन ऑफ गुड्स, they would produce only those goods which were important for profit. They would never produce those goods which were important for social welfare. And in that way government of India would not be able to achieve the goal of social welfare.
तो इसीलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने प्रोडक्शन की रिस्पॉन्सिबिलिटी, ज़्यादा से ज़्यादा गुड्स की प्रोडक्शन की रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद ली, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को पता था कि यदि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पब्लिक सेक्टर प्रोडक्शन करेगा तो उसका मेन गोल क्या रहेगा, सोशल जस्टिस। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वांटेड टू अचीव द गोल ऑफ सोशल जस्टिस, दैट इज़ वाई ऑल्सो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया took the responsibility of production of most of the goods during 1950 to 1990। और 1991 के बाद तो जब न्यू पॉलिसी हमारे कंट्री में आई, जो नेक्स्ट चैप्टर में बताऊंगा, सब कुछ चेंज हो गया। क्यों हुआ, कैसे हुआ, नेक्स्ट चैप्टर में। अभी हम बात केवल कर रहे हैं 1950 टू 1990। दिस इज द नेक्स्ट स्लाइड ओवर विच टॉपिक 4 इज गिवन। टॉपिक 3 कंप्लीट हो गया। टॉपिक 4 ट्रेड पॉलिसी। 1950 से 1990 में कौन सी ट्रेड पॉलिसी इंप्लीमेंट करी गई, बहुत पूछा जाता है। उस ट्रेड पॉलिसी का नाम क्या था, इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन। इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन का मतलब क्या होता है, सब्सटीट्यूशन का मतलब होता है रिप्लेस कर देना। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिसाइडेड टू रिप्लेस इम्पोर्टेड गुड। इम्पोर्टेड गुड मतलब फॉरेन कंट्रीज से खरीदना। तो इफ़ गवर्नमेंट इज परचेजिंग गुड्स फ्रॉम फॉरेन कंट्रीज, इट मीन्स गवर्नमेंट इज कंप्लीटली डिपेंडेंट ऑन foreign countries, but it is not good for a country, because if a country is dependent on foreign countries, it will be difficult for country to take its decisions independently. That is why most of the countries try to be self dependent। तो self dependent बनने के लिए क्या करना पड़ेगा, imports को substitute करना पड़ेगा। मतलब import बंद करके उनके जगह पे imported goods का क्या करना पड़ेगा, domestic production, मतलब कंट्री के भीतर प्रोडक्शन गुड्स का करना पड़ेगा। तो इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन एक ऐसी पॉलिसी होती है जिसमें इंपोर्ट को बंद कर दिया जाता है और जो भी इंपोर्टेड गुड्स होती हैं विद इन द कंट्री जो प्रोड्यूसर्स होते हैं उनको इनकरेज करा जाता है प्रोड्यूस करने के लिए। तो क्या हो जाता है, सब्सटीट्यूशन, रिप्लेसमेंट किसका, इंपोर्टेड गुड्स का, किससे, डोमेस्टिकली प्रोड्यूस्ड गुड्स से। इसी पॉलिसी को बोला जाता है इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन। ड्यूरिंग 1950 टू 1990 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यूज्ड स्पेशल काइंड ऑफ ट्रेड पॉलिसी दैट वाज नोन एज इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन। अंडर दिस पॉलिसी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या करा, अंडर दिस पॉलिसी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिसाइडेड टू इनकरेज द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स विद इन द कंट्री विच वर बीइंग इम्पोर्टेड फ्रॉम फॉरेन कंट्रीज। जो गुड्स फॉरेन कंट्री से हम इम्पोर्ट कर रहे थे उसकी जगह पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इनकरेज करा डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स को विद इन कंट्री गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करने के लिए। इसी पॉलिसी को बोला गया पॉलिसी ऑफ इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन। अब इसके क्या ऑब्जेक्टिव्स थे, पहला ऑब्जेक्टिव टू मेक इंडिया सेल्फ डिपेंडेंट। सेल्फ डिपेंडेंट कब आप होंगे, जब आप इंपोर्ट कम करेंगे और डोमेस्टिक प्रोडक्शन ज़्यादा करेंगे। इंपोर्ट का मतलब फॉरेन कंट्री से कम खरीदेंगे और डोमेस्टिकली विद इन कंट्री प्रोडक्शन ज़्यादा करेंगे। तो पहला सेल्फ डिपेंडेंट। और दूसरा टू प्रोटेक्ट इंडियन इंडस्ट्रीज़ फ्रॉम फॉरेन कंपटीशन। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इंपोर्ट को क्यों रोका इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन में, बिकॉज यदि गवर्नमेंट इंपोर्ट को नहीं रोकती तो इंडिया में इंडियन प्रोडक्ट्स भी रहते और फॉरेन इंपोर्टेड गुड्स भी रहते। इंपोर्टेड गुड्स डेवलप्ड कंट्रीज़ में बने हुए रहते तो उनकी क्वालिटी अच्छी थी, तो इंडियन मार्केट में गुड क्वालिटी फॉरेन इंपोर्टेड गुड्स भी अवेलेबल रहते, पुअर क्वालिटी इंडियन गुड्स भी अवेलेबल रहते। तो इंडियन लोग किसको प्रीफर करते, फॉरेन प्रोडक्ट्स को प्रीफर करते। तो इंडियन प्रोडक्ट्स की डिमांड कम हो जाती और इस तरह से बिकॉज ऑफ लैक ऑफ डिमांड इंडियन इंडस्ट्रियलिस्ट्स को अपनी प्रोडक्शन यूनिट्स को शट डाउन करना पड़ता। इस तरह से हमारे कंट्री में का इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट रुक जाता या हमारे कंट्री का इंडस्ट्रियलाइजेशन रुक जाता। इसीलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या चाहती थी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वांटेड टू प्रोटेक्ट इंडियन इंडस्ट्रीज फ्रॉम फॉरेन कंपटीशन, इसलिए इस पॉलिसी को लाया गया। अब इस पॉलिसी को कैसे इम्प्लीमेंट किया गया, ट्रेड पॉलिसी के दो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, टैरिफ और कोटा, इन्हीं को यूज़ करके। टैरिफ क्या होता है, इट इज़ एन इनडायरेक्ट टैक्स इम्पोज्ड ऑन एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। इनडायरेक्ट टैक्स जो होता है वो प्राइस में जोड़ता है। तो यदि एक्सपोर्ट पे इनडायरेक्ट टैक्स टैरिफ के नाम से जो जाना जाता है, यदि टैरिफ बढ़ा दिया गया एक्सपोर्ट पे तो एक्सपोर्ट का प्राइस बढ़ जाएगा। एक्सपोर्ट का प्राइस बढ़ जाएगा तो गुड्स की डिमांड फॉरेन कंट्रीज़ में कम हो जाएगी, एक्सपोर्ट कम हो जाएगा। यदि एक्सपोर्ट बढ़ाना है तो टैरिफ एक्सपोर्ट पे कम कर दिया जाएगा तो एक्सपोर्टेड गुड्स सस्ती हो जाएंगी फॉरेन कंट्रीज़ में और उनकी डिमांड बढ़ जाएगी। यदि इंपोर्ट इंक्रीज़ कराना है तो गवर्नमेंट टैरिफ बढ़ा देगी इंपोर्ट पे, तो इंपोर्टेड गुड्स महंगी हो जाएंगी, डिमांड कम हो जाएगी, इंपोर्ट घट जाएगा। यदि इंपोर्ट बढ़ाना है गवर्नमेंट को तो टैरिफ क्या करेगी, डिक्रीज़ कर देगी, इंपोर्ट सस्ते हो जाएंगे। इंपोर्ट सस्ते होंगे तो इंपोर्ट बढ़ जाएगा उसकी डिमांड बढ़ने के कारण।
तो इस तरह से ट्रेड पॉलिसी में टैरिफ को यूज़ किया जाता है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इस इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन की पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करने के लिए टैरिफ, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने टैरिफ ऑन इम्पोर्ट ऑन फ्रॉम फॉरेन कंट्रीज से जो इंपोर्ट हो रहा था, क्योंकि इंपोर्ट को एक बंद करना था, उस पर टैरिफ इंक्रीज़ कर दिया। इससे इंपोर्टेड गुड्स क्या हो गई, कॉस्टलियर हो गई, इनका दाम इंपोर्टेड गुड्स का बढ़ गया, कॉस्टलियर हो गई, और इसीलिए इनकी डिमांड क्या हो गई, कम हो गई, और इस तरह से इंपोर्ट हमारे कंट्री में घट गया। दूसरा होता है कोटा। कोटा क्या होता है, डायरेक्टली इट इज़ अ मैक्सिमम क्वांटिटी ऑफ इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट अलाउड इन अ कंट्री। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बोल देती है कि एक दिन में इतना एक्सपोर्ट कर सकते हैं। मान लीजिए कार 50 यूनिट्स एक्सपोर्ट हो रही है, गवर्नमेंट एक्सपोर्ट कम करना चाहती है, तो लिमिट 50 से घटा के 30 कर देगी अपने आप, इंपोर्ट या एक्सपोर्ट घट के 30 हो जाएगा। सपोज एक्सपोर्ट 50 का हो रहा है, गवर्नमेंट 30 का कराना चाहती है पर डे, कोटा घटा के कितना कर देगी, कोटा मतलब क्वांटिटी, एक्सपोर्ट की क्वांटिटी घटा के कितनी कर देगी, पर डे यू कैन एक्सपोर्ट ओनली 30 यूनिट्स, घट जाएगा। बढ़ाना चाहती है, बढ़ा के कर देगी 70 यूनिट्स, बढ़ जाएगा। ऐसे इंपोर्ट घटाना है, 50 से 30 करना है, 30 कर देगी। 50 से 70 करना है, 70 लिमिट बढ़ा के कर देगी। तो कोटा में क्या होता है, बस क्वांटिटी गवर्नमेंट फिक्स कर देती है कि इतना क्वांटिटी आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं, इतना इंपोर्ट कर सकते हैं। तो अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या किया होगा, कोटा लिमिट किस पे लगाया होगा, एक्सपोर्ट पे या इंपोर्ट से, इंपोर्ट पे, क्योंकि एक्सपोर्ट से कुछ लेना देना ही नहीं था इस पॉलिसी का, केवल क्या करना था, हिट करना था किसको, इंपोर्ट को, पॉजिटिवली या एडवर्सली इंपोर्ट को घटाना था। तो कोटा लिमिट ऑन इंपोर्ट वाज रिड्यूस्ड, मतलब यदि कार का इंपोर्ट पर डे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अलाउ किया हुआ था 50, तो घटा के कर दिया 10 या 5, ताकि इंडिया में फॉरेन कार्स कम आएंगी, तो इंडिया में इंडियन कार्स की डिमांड बढ़ेगी, और इंडियन कार्स की डिमांड बढ़ेगी तो इससे मोटिवेशन मिलेगा इंडियन इंडस्ट्रियलिस्ट को इंडिया में कार मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स लगाने के, और इस तरह से इंडिया का भाई इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट होगा। यहाँ पे मैंने कार का एग्जांपल लिया, या किसी भी गुड्स के कॉन्टेक्स्ट में एग्जांपल आप सेट कर सकते हैं। तो इस तरह से सारी स्लाइड्स कंप्लीट हुई, और आई होप दैट आपको समझ में आया होगा।